Assalamu alaikum everyone, and this is Safahan guys. Let's start ACE level chemistry paper 1 multiple choice question of February March 2021, variance 12. Duration of this paper is 1 hour. So question number 1. The table shows, oh my goodness, wait, let me arrange. Yes, the table shows the number of protons, neutrons, and electrons in 4 different particles W, X, Y, and Z. Which pair represents the atoms of 2 isotopes of the same element? Now, first of all, remember that examiner is talking about atoms. And when we say atoms, then it means these are neutral species, which means they don't have any charge. They do not have any charge because number of protons is always equals to number of electrons in atoms, right? Now the next part of the question is 2 isotopes. So isotopes of the same element have same number of protons and electrons but different number of neutrons. Same number of protons and electrons, but different number of neutron. Now the issue is okay, we have 32 protons, 32 electrons. All right. The protons and electrons are same, but neutrons are different. Similarly, this is going to be the incorrect because protons and electrons are different. Now, in this scenario, 32 protons and 32 electrons, whereas neutrons are different, which means W and Y are the same element and both of them are isotopes of each other because they have same number of protons and electrons but different number of neutrons. So W and Y, and obviously A is going to be the right answer. Okay. Question number 2. Where in the periodic table is the element that has an outer electron shell arrangement of 4s2 4p3? Now the outer shell electronic configuration is 4s2 4p3. So total valence electrons is 5, meaning element belongs to group 15 of the periodic table. Okay, according to the new periodic table, element must be belong 15. So that means option A and B incorrect. 15 is here, 15 is here. Okay. Now, according to my lecture, this is the principal quantum number, and principal quantum number is basically represents the shell number or period number. So basically, principal quantum number is 4, meaning it has 4 shell. So 4 shell is here, 4 shell is here. But the period number is 4, which means it has total 4 shells, and therefore we can say the element belongs to period 4. The period 4 exists in B or D, and obviously D is going to be the right answer. Okay. Question number 3. Substance Q is hydrocarbon, and hydrocarbon is basically consists of carbon and hydrogen only. When 1 gram of Q is completely burned, 3.22 gram of carbon dioxide is produced. What could be the identity of Q? That's called trial and error method. Now, cyclohexene has a formula of C6H10, and its MR is going to be 72. Okay, we have the mass, we know the MR, we can find the moles of Q. But before that, let's make the equation for the combustion of cyclohexene. So whenever cyclohexene undergoes combustion, it will turn to carbon dioxide and water. Now carbon and hydrogen both are balanced. We need to balance the hydrogen. We have 10 hydrogen atoms. So यहाँ पर 5 लगाएंगे.
यहाँ टोटल आपके पास हो गए 12 ऑक्सीजन, 12 + 5 is basically 17. So it's going to be 17/2. Okay, that's the balanced chemical equation. Now let's start the calculation thing. Number 1, moles of C6H10. So it's 1 divided by 72. So 1 divided by 72, guys, is going to be 0.01388 moles. Okay, now according to the equation, it has 1 mole, it has 6 moles, so ratio is going to be 1:6. So C6H10 versus carbon dioxide, 1:6. Okay, now we have 0.01388 moles. So what about the moles of carbon dioxide? The moles of carbon dioxide is 0.0833. Okay, now we need to find the mass of carbon dioxide. So first of all, MR of carbon dioxide is 44. ये आपको खुद से calculate करना है. Now the next is mass of carbon dioxide. Mass of carbon dioxide is 44 multiplied by 0.0833. So it's multiplied by 44 is going to be 3.66. Oh my goodness. Oh my goodness. What did I made a mistake actually. Oh my goodness. Guys, you have to be very, very careful in calculation. It is not 72, it is 82. Obviously, it is also 82. The format is same. My bad. Sorry, guys. So 1 divided by 82 is going to be 0.0121. And 0.0121 को जब हम multiply करेंगे 6 से 0.0121 into 6 is going to be 0.0726. 0.0726 moles, right? एक छोटा सा error and you will get you will see the consequences. So make sure कि ये गलतियां ना हो आपसे. 726 into 44 is going to be 3.19. So 3.19 का मतलब 3.2 gram. So this mass of carbon dioxide is exactly matching the mass of this carbon dioxide, 3.2 gram. इसका मतलब my correct answer is A. Okay. I hope you get the logic. I hope it makes sense to you कि हमने इसको किस तरह से attempt किया है. Okay, let's move on to question number 4. Originally, chemists thought indium oxide had the formula INO. By experiment, they showed that 4.8 gram of indium combined with 1 gram of oxygen to produce 5.8 gram of indium oxide. The AR of oxygen was known to be 16. Which value of the AR of indium is calculated using these data? So I know the mass of indium. I know the mass of oxygen. And I know the mass of indium oxide. Okay, and we need to find the value of the AR of indium. So first of all, let's find out the mass of oxygen. Sorry, moles of oxygen. So 1 को divide करो 32 से because oxygen is diatomic. So जब 1 को 32 से divide करोगे, it's going to be 0.03125 moles of oxygen. Okay, this is my first step. Second step, make the equation. जब indium और oxygen आपस में reaction करेंगे, indium oxide बनाएगा INO. Let's balance the equation. 2 here, 2 here. According to the equation, ये 2 mole है. According to the equation, ये 1 mole है. अगर आपने 0.03, sorry,
0.03125 मोल्स दिए, तो बताइए मोल्स ऑफ इंडियम कितने हो जाएंगे? So moles of indium is going to be 0.0625. Okay. Now we need to find out the AR. So AR का फॉर्मूला निकालने के लिए हम फॉर्मूला AR डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मास ओवर moles. So moles of indium is given और mass of indium is also given. Mass of indium is 4.8, moles आपके पास है 0.0625. तो यहाँ से AR आपके पास आ जाएगा 76.8 और 76.8 is basically 77 round of होकर. So I think B is going to be the right answer. Okay. I hope it makes sense to you. Question number 5. In which substances are the only intermolecular forces temporary dipole induced dipole attraction? Obviously a polar. So it exhibits permanent dipole forces. It is also polar. It exhibits permanent dipole, also hydrogen bonding. Then it is also polar. It exhibits hydrogen bonding. And this is non-polar. And obviously it exhibits only instantaneous dipole, induced dipole forces. So I think C is going to be the right answer. Okay. Next is a solution contain 0.25 gram of sulfur dioxide in 1 dm cube of water. So I know the mass, I know the volume. Okay. Which volume of sulfur dioxide measured at 50 degrees Celsius? So we know the temperature, and obviously a temperature 273 add होकर use होगा, and I know the pressure. So most likely we need to apply the PV equals to nRT, that is ideal gas equation. So हम यहाँ पर ideal gas equation apply कर देते हैं. ये हो जाएगा आपके पास PV equals to nRT. We need to find out the volume. तो volume हो जाएगा nRT upon P. सही है. V equals to n. N क्या होता है? Mass over mR. तो mass of sulfur dioxide is given 0.25. R की value is also given 8.31. And obviously temperature is 50. 50 plus 273 is going to be 323 divided by pressure and MR. MR of sulfur dioxide is 64 and pressure is basically 1 time 10 to the power 5 Pascal. So volume is basically 0.000105 meter cube, and the answer given in cm cube. So we need to convert cm cube into meter cube. So 1 cm cube equals to 1 time 10 to the power minus 6 meter cube. So we have 0.000105 meter cube. So how much cm cube we have? तो ये हो जाएगा 0.000105 divided by 1 exponent minus 6 is going to be 105 cm cube. So that's my answer, 105. 105 cm cube is D. D is going to be the correct answer. Okay. ये याद रखिएगा कि ये जो मोल्स थे, एक मिनट में इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन में लेकर आ जाता हूँ आपकी आसानी के लिए. ये हमने इस तरह से यूज किया है. V इक्वल्स टू n. n होता है मास RT ओवर MR इनटू P. बस ये वैल्यूज प्लग इन किए हमने. ठीक है, बिकॉज मोल्स इज बेसिकली मास ओवर MR. ओके. Okay, next question. An experiment was performed to determine the enthalpy change of combustion of ethanol. To collect the data, mass of water,
Okay, mass of water is given. Mass of ethanol burnt is given, temperature rise is given, molar mass of ethanol is given, specific heat capacity is given, which expression can be used to calculate the enthalpy change of combustion of ethanol in kilojoules per mole. Okay. See, in the first step, I will use delta H equals to minus mc delta T. ये वो इक्वेशन है जो कि आपके सिलेबस के अंदर गिवन है और आपके सिलेबस में लिखी है, तो मैं डायरेक्टली उसी को यूज कर रहा हूँ. M is basically the mass of water and mass of water is represented by W, तो मैं यहाँ W लिखूंगा minus W. Specific heat capacity की value is given 4.2, उसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है. और डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो Y है, तो हम उसको Y को एज इट इज रखेंगे. ओके, ये जूल्स में आंसर आ गया हमारे पास. नाउ वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल्स, एंड फॉर दैट मैं इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो ये मेरे पास आ गया किलो जूल्स. एंड दैट्स माय स्टेप 1. एंड स्टेप 2, मुझे मास ऑफ इथेनॉल बर्न्ट मालूम है, मुझे एमआर ऑफ इथेनॉल मालूम है, तो मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे मोल्स मालूम हो जाएंगे. सो मैं यहाँ से मोल्स ऑफ इथेनॉल बर्न्ट डिटरमिन कर लेता हूँ. इट्स गोइंग टू बी x over z मोल्स. सही है. तो भाई इतने मोल्स में इतनी एनर्जी है, 1 मोल में कितनी एनर्जी होगी? दैट्स माय लास्ट स्टेप. x over z moles gives you minus w 4.2 y over 1000 kilojoules. तो अगर आपके पास 1 मोल है तो बताइए कितनी एनर्जी होगी? तो भाई ये हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस w 4.2 y x. अच्छा नीचे z, तो ये z हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000 x. ठीक है. सो ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? माइनस w 4.2 बाय z माइनस w 4.2 by z over 1000 x. A में लिखा है, A is going to be the right answer. Okay, and that's your final expression, guys. Remember this. ठीक है जी. Next question. VO2Cl reacts with sodium iodide under acidic condition. The oxidation state of chlorine is -1 in VO2Cl, and in this, which row about this reaction is correct? Okay. सबसे पहली बात, VO2Cl में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लो, तो वेनेडियम इज x, ऑक्सीजन इज -2 times 2 because we have 2 oxygen atom, chlorine is -1 equals to 0 because molecule is neutral. ये हो जाएगा आपके पास +3 -4 -1, ये हो जाएगा +5. ओके. सिमिलरली आपके पास VOCl2 भी है, तो इसमें भी वेनेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं. वेनेडियम एज x, ऑक्सीजन इज -2, क्लोरीन इज -1 multiply by 2. Since the molecule is neutral, which is y equals to 0, then x equals to -2 -2 +4. Okay. On the other hand, sodium iodide में iodine is -1. Over here, iodine is 0. So if you are going from -1 to 0, इसका मतलब it is increase in oxidation state, and that means this process is oxidation. Okay. So we have +5 oxidation state of vanadium here, and we have +4, right? So
vanadium is basically, vanadium is getting reduced due to the decrease in oxidation state. So iodide ions are oxidized because these are the iodide ions converting into iodine, which means iodide ions are oxidized. तो अगर iodide ions oxidize हो रहे हैं तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है. इसका मतलब B गलत, इसका मतलब D गलत. Now vanadium is getting reduced. तो vanadium जो है वो reduce हो रहे हैं. तो vanadium सिर्फ और सिर्फ यहाँ reduce हो रहा है और D में reduce हो रहा है. तो right answer is going to be C obviously. ठीक है? I hope it makes sense to you. In which reaction is water behaving as a Bronsted-Lowry base? Water behaving as a Bronsted-Lowry base. तो सबसे पहले तो बात आपको ये पता होनी चाहिए कि Bronsted-Lowry base है क्या. Bronsted-Lowry base is basically proton acceptor. सही? That is hydrogen acceptor. तो अगर water proton acceptor है तो मैं water को हाइड्रोजन आयन के साथ यानी प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करवाता हूँ और ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O+, जिसको हमने क्लास में कहा था प्रोटोनेटेड वाटर और हाइड्रोनियम आयन. ना हमें ये देखना है कि ये हमें प्रोडक्ट कहाँ मिल रही है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर मिल रहा है. हमें ऑप्शन ए में ये कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा, हमें कहीं हाइड्रोनियम आयन या प्रोटोनेटेड वाटर नहीं मिल रहा, इसका मतलब ऑप्शन ए इज रॉन्ग. हमें सी में भी प्रोटोनेटेड वाटर नहीं मिल रहा, सी भी रॉन्ग, और डी में भी हमें प्रोटोनेटेड वाटर नहीं मिल रहा, इसलिए डी भी रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी, बिकॉज इस वाटर ने ये वाला प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और ये कन्वर्ट हो गया H3O+. तो ये एग्जैक्टली ये वाली इक्वेशन आ गई है, कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, एंड सिंस ओवर हियर प्रोटॉन एक्सेप्टर है वाटर, इसका मतलब ये ब्रॉन्स्टेड बेस होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. A large excess of marble chips is reacted with 25 cm³ of 1 mole per dm³ hydrochloric acid at 40 degrees Celsius. So I know the concentration and I know the volume of HCl at this temperature, which means I can find the moles of HCl from this. So सबसे पहला moles of HCl find out कर लो. मुझे वॉल्यूम पता है, मुझे कंसंट्रेशन पता है, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे, which is 0.025 moles. Okay, let's read the question again. How is the result different when this reaction is repeated with 60 cm³ of 0.5 mole per dm³ hydrochloric acid at 40? तो again मुझे इस नेक्स्ट उसके लिए भी मोल्स ऑफ HCl डिटरमिन करने हैं. तो मुझे वॉल्यूम पता है, मुझे कंसंट्रेशन पता है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट मोल्स ऑफ HCl इन द सेकंड हाफ. इट्स गोइंग टू बी 0.03 मोल. ओके, ऑलराइट. सेकंड थिंग, marble chips is in excess. इसका मतलब HCl is the limiting reactant. ठीक है. दूसरी बात, टेम्परेचर इन बोथ द केसेस इज सेम. तो टेम्परेचर सेम है तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों केसेस में सेम होगा. ठीक है, बट इशू ये है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन 1 मोल पर dm³ थी, यहाँ पर कंसंट्रेशन अब 0.5 मोल पर dm³ हो गई है. सो कंसंट्रेशन एक्चुअली डिक्रीजेस. व्हेन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेस. Rate also decreases because मैंने कुछ क्लासेस पहले बताया था कि rate is directly proportional to concentration. सही है, rate decrease होगा. Okay, so rate of reaction is faster, wrong. Rate of reaction is faster, wrong. तो ये दोनों तो बिल्कुल absolutely incorrect because rate of reaction decrease हो रहा है क्योंकि concentration decrease हो गई है. So rate of reaction decrease होगा, ये ठीक है बिल्कुल, और ये भी ठीक है बिल्कुल. दोनों केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है. एंड मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मेड व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट. अब ये कैसे पता चलेगा कि मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मेड? सी,
These are more moles, right? तो अगर मोल ज्यादा हैं तो gives more product. तो आप यहाँ लिख सकते हो more moles gives more product. तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो ज्यादा आएगी, ये बात तो सही है. ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है? स्लोअर तो होगा एंड लेस ऑफ द प्रोडक्ट. नहीं, लेस प्रोडक्ट नहीं होगी, जब मोल ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी मोल ज्यादा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका, तो ये भी गलत. राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू किस तरह से हमने इसको मर्ज किया है या लिंक करने की कोशिश की है. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है. The Boltzmann distribution curve for gaseous mixture of ethene and hydrogen is shown. Nickel is an effective catalyst for the reaction that occurs. How does the diagram appear if the same reaction mixture is at a higher temperature? Again, clue is if we are talking about higher temperature, और आप जानते हैं कि higher temperature जब होता है तो most probable energy decrease होती है. Most probable energy decreases. Second, curve maximum shifts to the right hand side. And third, temperature has nothing to do with the activation energy. Temperature से सिर्फ rate of reaction पे फर्क पड़ता है. Temperature have no effect on activation energy. Okay. So option A, the curve is unchanged. Oh my goodness, that's absolutely incorrect because shape of the curve also changes as we change the temperature. Shape of the curve also changes. Okay, so option A is incorrect. Next, the value of both activation energy and activation energy decreases. So activation energy has nothing to do with the temperature, which means option B and option C is incorrect. Consequently, D is going to be the right answer because activation energy will remain same even if you increase the temperature in such reaction, right? And the graph should be like this. Oops. What? Oof. My bad. Oh, that makes sense. That's at a higher temperature. And what is the most probable energy at low temperature? This one is the most probable energy. And at high temperature, this is the most probable energy. Okay. Question number 12. Which observations are made when a sample of silicon chloride is added to a beaker of water? So we did this in class. When we add silicon tetrachloride in water, because of the presence of vacant d orbital, can easily hydrolyze into silicon dioxide and HCl. And obviously HCl के misty fumes होते हैं, you guys know that, और SiO2 के white precipitate. Okay, so precipitate मिलेंगे हमें, तो option A is incorrect. और steamy fumes मिलेंगे, which is also called misty fumes. So right answer is going to be B. Okay. Obviously C और D भी गलत हैं क्योंकि आपको ये दोनों ऑब्जर्वेशंस एक साथ ऑप्शन सी और डी में अवेलेबल नहीं है. ऑप्शन सी कह रहा है कि सिर्फ प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, ऑप्शन डी कह रहा है कि सिर्फ मिस्टी फ्यूम्स मिलेंगे या स्टीमी फ्यूम्स मिलेंगे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. लेट्स सी व्हाट वी हैव. Which row is correct? Okay,
the first ionization energy of phosphorus is greater, that's right. पहला statement सीख है, than that of magnesium. But reason क्या है? Electron is lost from a 3p orbital in both cases. That is wrong, because magnesium के 3s orbital से electron जाता है और phosphorus के 3p orbital से electron जाता है. अगर आप configuration ज़हन में हो आपके, this is magnesium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा. और अगर आप फॉस्फोरस ले रहे हैं 1s2, 2s2, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है गाइस, 2p6, 3s2, 3p3, और इसके 3p से इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो ये दोनों में से तो नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ओके, लेट्स मूव टू अनदर ऑप्शन. The melting point of phosphorus is greater than that of magnesium. That is गलत, because magnesium is metal, it exhibit metallic bonding. Obviously ये गलत हो गया. Next is the atomic radius of phosphorus is smaller. Across the period, atomic radius decreases. इसका मतलब phosphorus का atomic radius is smaller than magnesium. So this statement is right. But reason क्या है? Reason ये है कि phosphorus has greater nuclear charge than magnesium. That's true, because phosphorus का atomic number 15 है. It has 15 proton in its nucleus. Magnesium का proton 12 है. It has 12 protons in the nucleus. So phosphorus has more nuclear charge than magnesium. So C is going to be the correct answer. Let's talk about D. The electrical conductivity of phosphorus is smaller. Phosphorus cannot conduct electricity because of the absence of free mobile electrons. This statement is incorrect. Okay. Obviously, इसकी reason भी incorrect है, because जब free mobile magnesium में, magnesium is metal, it has metallic bonding, not ionic bonding. Okay. Question 14. Which row correctly describe one property of barium and one property of barium oxide? Observation when barium metal is added to water. Okay, that's easy. So when we add barium metal in water, obviously barium hydroxide बनेगा and hydrogen gas बनेगी. Barium hydroxide soluble है, इसका आपको colorless solution मिलेगा, और ये आपके पास होगा bubbles of gas. And obviously barium is more reactive, so bubbles of gas given off very quickly. So bubbles of gas given off very quickly, so rapid effervescence is seen here. Okay, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसका मतलब B गलत, इसका मतलब A भी गलत. Let's talk about the other stuff. तो क्या करें? pH of solution obtained when spatula measured of barium oxide is added to 100 cm cube of water. So when we are gonna add barium oxide into water, obviously it's going to be soluble in water, and obviously barium hydroxide is formed, and we know that strong alkaline solution मिलेगा हमें. Strong alkali है ये, and since it is in a strong alkali, obviously इसकी pH जो है वो 13 से 14 की range में होगी. 13 is here, 13 is here, and obviously D is going to be the right answer. That's the most easiest, I believe, question so far in this paper. Okay. Question number 15. Anhydrous white salt Z is heated strongly for 30 minutes. A mixture of gases is given off. That is the statement, mixture of gases. Okay. The solid remaining in the test tube, is then dissolved in a small volume of dilute hydrochloric acid. The addition of a few drops of dilute sulfuric acid to the test tube causes a white precipitate to form. When you add sulfuric acid, and you will get white precipitate, इसका मतलब sulfate ions is there. That means, barium ions is there because of the formation of presence of barium sulfate. Okay. Oh, not presence of, that means formation of barium sulfate, और जब barium sulfate की formation है, इसका मतलब presence of barium ions. कंफर्म हो गया यहाँ पर? ठीक है.
Option A is incorrect and option C is incorrect because whenever we decompose barium carbonate, it will give only 1 mole of carbon dioxide. So both of them give 1 mole of carbon dioxide. The question says mixture of gases is given off, which is why A and C are wrong. Now the issue is that magnesium barium nitrate or magnesium nitrate. So when you add sulfuric acid, obviously formation of magnesium sulfate is also possible, but issue is magnesium sulfate is soluble in water, तो उसके precipitate नहीं मिलेंगे आपको, precipitate सिर्फ barium के मिलेंगे. All right, and therefore B is going to be the correct answer. Okay, so that's an interesting question. Barium nitrate is decomposed on heating. It gives barium oxide, nitrogen dioxide, and oxygen gas. So these are the mixture of gases, guys. ठीक है? और ये precipitate कैसे बन रहे हैं? ये precipitate इस तरह से बन रहे हैं कि आपने जब barium oxide बना लिया और आपने उसमें sulfuric acid ऐड किया, तो ये barium sulfate में convert हुआ, जिसके आपको white precipitates मिले. That is the whole background. Okay. (16) Chlorine gas is reacted with aqueous sodium hydroxide. The oxidation number of chlorine changes from 0 to -1 and also from 0 to +1. And changes in oxidation state is 0 to -1, also 0 to +1. इसका मतलब disproportionation reaction है because एक ही element दो different oxidation state में exist कर रहा है, -1 में भी +1 में. Under which conditions do this reaction occur and what is the color of the solid silver salt with chlorine in the oxidation state -1? अच्छा, सबसे इशू ये है कि सिल्वर सॉल्ट का जो कलर होता है विद क्लोराइड वो ऑब्वियसली वाइट होता है, इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं. ठीक है, सो वाइट प्रेसिपिटेट्स यहाँ है और वाइट प्रेसिपिटेट्स यहाँ है. इसका मतलब या तो आंसर ए है या फिर आंसर डी है. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हम उसको क्लोरीन गैस से रिएक्शन करवा रहे हैं. तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हम उसको क्लोरीन गैस से रिएक्शन करवा रहे हैं. ये कन्वर्ट होगा सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोरेट 1 में और water. Okay, now over here the oxidation state of chlorine is 0, over here the oxidation state of chlorine is -1, and over here the oxidation state of chlorine is +1. That's what we have done in the class. So chlorine जो है वो simultaneously reduced भी हो रहा है, chlorine simultaneously oxidized भी हो रहा है, which is why it is a disproportionation reaction. And obviously when this reaction takes place you need cold dilute NaOH, और cold dilute NaOH कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, and therefore A is going to be the right answer. Okay, I hope it makes sense to you कि जो +1 और -1 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी कोल्ड कंडीशन, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से, और कहीं से भी नहीं मिलेगी. ठीक है, next question number 17. When concentrated sulfuric acid reacts with sodium iodide, products include sulfur, iodine, hydrogen sulfide, and sulfur dioxide. Which statement is correct? Okay, sodium iodide है, ये सोडियम आयोडाइड है, इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा HI में और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में. फिर ये जो HI है ये फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, इसको रिड्यूस करेगा H2S में. ठीक है, और खुद ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में और वाटर बन जाएगा.
अब जाहिर सी बात है ऑक्सीजन 4 है मेरे पास, मैं यहाँ पर 4 लगाऊंगा। हाइड्रोजन 8 होगा मेरे पास, तो यहाँ पर मैं 8 लगाऊंगा। तो 8 + 2 कितने हो गए 10, तो यहाँ 8 + 2 हो गए 10। अब यहाँ पर आयोडीन 8 हो गए, तो आयोडीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4। दैट इज माय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट? नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट। हाइड्रोजन सल्फाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रिडक्शन रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई -2। ऑलराइट, so +6 से -2 में जाना is basically the decrease in oxidation state, and decrease in oxidation state is reduction. That's my answer. Right? आगे भी पढ़ लेते हैं। Iodines are stronger oxidizing agent. Incorrect. Iodines reducing agent होते हैं। ठीक है। Sulfur atom from sulfuric acid are both oxidized and reduced. नहीं, सल्फर एटम रिड्यूस हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे। ठीक है, ये भी गलत। नेक्स्ट इज सल्फर एटम फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड आर ऑक्सीडाइज। नहीं भाई, ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी गलत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। NO, NO2 and CO and unburned hydrocarbons are present in the exhaust gases of internal combustion engine. When catalytic converter are used to remove these compounds from the exhaust gases, redox reaction occur. What happens to each compound in the catalytic converter? आप जानते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हुए कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो रिड्यूस होता है और कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूस। ओके। फिर मैंने बताया था अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑक्सीडाइज्ड। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ओके, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सी के अंदर हमें मिले। तो NO2 जो है वो भी रिड्यूस होगा। ऑब्वियसली NO2 रिड्यूस क्यों होगा भाई? NO2 रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन गैस में। तो +4 से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हो रही है 0, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 19। Methylamine has similar chemical properties to ammonia. Methylamine reacts with hydrogen chloride to form a white crystalline solid, methyl ammonium chloride. ये इक्वेशन है। तो वो कह रहे हैं a sample of methyl ammonium chloride is heated with aqueous sodium hydroxide. What are the products? Interesting question. मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था, अगर आपको याद हो। तो स्टेटमेंट ये था, when any ammonium salt react with any alkali, then always ammonia gas is given off, and obviously salt भी बनेगा, water भी बनेगा और also form. So आपके पास ये सॉल्ट है, सॉल्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं CH3 NH3+ Cl- और इसको NaOH से रिएक्शन करवा देते हैं। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ से Cl- और यहाँ से Na दोनों मिलकर बना लेंगे NaCl+। नेक्स्ट इज, आप जानते हैं कि यहाँ से OH- और यहाँ से H, ये दोनों मिलकर बना लेंगे H2O। व्हाट्स लेफ्ट नाउ? तो भाई आपके पास रह जाएगा CH3, और क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन जा चुका है तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2। अब आप चेक कीजिए कि ये तीन प्रोडक्ट्स कहाँ लिखी हुई हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर, एंड CH3NH2। CH3NH2 इज मिथाइलामाइन। तो मिथाइलामाइन
सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, मिथाइलमाइन, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर मिला है एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. Okay. Question 20. The structure of citric acid and isocitric acid are shown. How many chiral centers does each acid possess? Okay. No chiral because of the presence of double bond. No chiral because of two similar hydrogens. No chiral because of double bond. 1, 2, 3, 4. No chiral because of two similar hydrogen. No chiral because of the presence of double bond. What about this one? It is also not chiral because these two groups are similar. Okay, I hope it makes sense to you. No chiral because of double bond. No chiral because of same hydrogen. No chiral because of double bond. No chiral because of double bond. This one is chiral. This one is chiral. Okay, so this, oops, this carbon is chiral and this carbon is also chiral. इसको different colors से show कर देते हैं. Oh, these two carbons are chiral. So isocitric acid has two chiral centers, whereas citric acid has none. So right answer is going to be obviously D. That's an easy question. Okay, हम यहाँ कह सकते हैं कि both are similar groups. All right. Now the next is how many tertiary alcohols have the molecular formula C6H14O? How many tertiary alcohols? C6H14O. Tertiary alcohol. Okay. Not a big deal. Tertiary alcohol means that we need to make an alcohol जिसमें एक कार्बन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें OH जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसके पास कोई हाइड्रोजन ना हो. That's your tertiary alcohol. That's what we need to make by using this formula. Okay, using this formula. So let's make the structure. First one is CH3, CH2, oops, CH2, single bond, carbon. This is CH3, this is CH3, and this is OH. Okay. तो देखें OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है और 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं ये. This is my first one. Second. Second हो सकता है मेरे पास इस तरह से हो CH3, CH2, carbon, OH, CH2, CH3, and this is going to be CH3. सही है? But groups can be similar, groups can be different. मसला थोड़ी है. So ये हो गया आपका दूसरा. Anything possible? Any other possible structure? और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर है? लेट मी ट्राई वन मोर. कार्बन है, इसके साथ CH3 रखो, इसके साथ C2H5, इसके साथ CH3, OH. What's left now? How many carbons? 4. ठीक है, तो ये एक आ जाएगा आपके पास C3H7. Okay. How many carbon atoms now? 3, 5, 6, 7. 7 carbon atoms हो गए. Okay, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको C2H5 कर देता हूँ.
और ये CH3 कर देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं हम। आई बिलीव आपको शायद समझ में आए कि किस तरह से हमने इसको मैनेज किया है। लेट मी चेक वन मोर टाइम। नो, नो, बिकॉज इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये तो नहीं होगा। अच्छा देखो, इस तरह से भी तो बन सकता है, CH3 CH। एक मिनट मैं बताता हूँ, ये देखो। ओ माय गुडनेस, दिस इज सो कंफ्यूजिंग। इसको इस तरह से देखो, ये है तुम्हारे पास टर्शियल अल्कोहल, ये आ गया OH, इसके साथ एक CH3 यहाँ लगाओ, इसके साथ एक CH3 यहाँ लगाओ, उसके बाद CH3 करो और यहाँ एक ब्रांच लगा दो। सही, ये टर्शियल अल्कोहल हो जाएगा। तो एक तुम्हारे पास ये हो गया, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास ये हो गया, ठीक है। और तीसरा तुम्हारे पास ये हो गया। ये तीन हो गए, पर इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही, which means C is going to be the right answer. Okay, C is going to be the right answer. That is the only possible structures. Next, the diagram shows the structure of a bromo compound that may be formed by the reaction of bromine with hydrocarbon. Which row is correct? Okay, which row is correct? सबसे बहुत टेक्निकल सा एरिया है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, राइट। दैट मीन्स कि जो हाइड्रोकार्बन है वो एल्कीन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एल्कीन होता तो बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होता, और अगर बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होता तो हाइड्रोजन जरूर आता उसके साथ। सही है, तो इट शुडंट बी एन एल्कीन, इट शुडंट बी एन एल्कीन, ठीक है जनाब, इट शुडंट बी एन एल्कीन, इट शुडंट बी एन एल्कीन। तो एल्कीन तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, तो इसका मतलब ए भी गलत, बी भी गलत, क्योंकि एल्कीन और सॉल्यूशन रिएक्शन, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो बेसिकली ये गलत ही हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अगर हाइड्रोकार्बन से आपने एक कंपाउंड बनाया है और उस कंपाउंड में अपने हैलोजन हाइड्रोकार्बन पार्ट के ऊपर इंट्रोड्यूस किया है, दैट इंडिकेट्स द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो आई बिलीव डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सही, बहुत इंपॉर्टेंट है कि substitution occur on hydrocarbon part. This shows it is a free radical reaction. Okay, I hope you get the point. Okay, next question. Part of the structure of strobilurin is shown. R and R dash are inert groups. Strobilurin is warm with aqueous sulfuric acid producing compound X. Okay, सबसे पहली तो बात ये हो गई आपकी कि भाई ये जो आपके पास कंपाउंड है स्ट्रोबिलुरिन, इसमें एस्टर लिंकेज है, तो जब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो एस्टर की एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, और जब एस्टर की एसिड हाइड्रोलिसिस होगी तो ऑब्वियसली ये यहाँ से टूटेगा, और टूट कर ये कन्वर्ट हो जाएगा दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। द फर्स्ट वन इज
CH3OH, that is methanol, and the second one is this. Oh God. ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ भी आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ भी आएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH और C डबल बॉन्ड होगा. ओके, दैट इज द होल स्ट्रक्चर. नाउ द इशू इज, वो कह रहे हैं व्हेन कंपाउंड, और ये आपका कंपाउंड X हो गया है, दिस इज योर X. ओके, वो कह रहे हैं व्हेन कंपाउंड X is then treated with hydrogen in the presence of a nickel catalyst producing compound Y. तो जब मैं इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, in the presence of nickel catalyst, तो ये सारे के सारे जो डबल बॉन्ड हैं ये सैचुरेट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्डेड हो जाएंगे. तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ये होगी, नाउ वी नीड टू चेक कि ये आपका Y है और आपको देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड Y कहाँ पर है. तो बेसिकली ये टैली करें कहाँ पर है. ये गलत है आपका, इसलिए क्योंकि अल्कोहल नहीं आ सकता यहाँ पर. ठीक है, ऑब्वियसली ये भी गलत है क्योंकि इसमें आप अल्कोहल लगा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें भी अल्कोहल पॉसिबल नहीं है. तो राइट आंसर इज ए, बिकॉज ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा इस स्ट्रक्चर से टैली हो रहा है. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ठीक है, क्वेश्चन 24. Which compound produces a ketone when refluxed with an acidified solution of potassium dichromate 6? अच्छा, पहली तो चीज ये कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, under reflux condition they will turn to carboxylic acid. और जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, under this condition they will turn to ketone. Okay, tertiary alcohol never oxidize. So option A is incorrect because it is a 1 degree alcohol, primary alcohol, it will turn to carboxylic acid. It is also incorrect because it is also a 1 degree alcohol, because 1 dash whole कह रहा है तो इसका मतलब 1 degree alcohol है, तो इसका मतलब ये भी carboxylic acid देगा. Now the competition exists between C and D and we need to open the structure, we need to write the structure. तो ये हो जाएगा आपके पास. C के लिए हम बात कर लेते हैं 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेन. सेकंड कार्बन के ऊपर OH क्योंकि 2 डैश होल है, सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल क्योंकि 2 डैश मिथाइल कह रहा है. तो ये आपका टर्शियल अल्कोहल हो गया, and obviously this tertiary alcohol is not going to oxidize. Okay, this is 3 degree alcohol, cannot oxidize. That means answer is D. Okay, and let's make the structure of D. 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन पे OH है, that is 2O, और थर्ड कार्बन के ऊपर मिथाइल है. Okay, so this is your secondary alcohol, it will turn to ketone on oxidation. Okay, which is why this is right. D is going to be the right answer. Question 25. Dibromo pentane can undergo double elimination reaction to produce hydrocarbons. Which isomer produces only one hydrocarbon product? So one hydrocarbon product चाहिए हमें, one hydrocarbon product चाहिए हमें, one hydrocarbon product चाहिए हमें. Okay.
Okay, it's going to be tough. Let's make the structure first. 1, ये ब्रोमीन कर लीजिए आप. 2, 3, 4, 5. सही है. तो जब एलिमिनेशन होगी तो यहां से हो जाएगी एलिमिनेशन. डबल एलिमिनेशन कह रहा है ना. डबल एलिमिनेशन का मतलब यू विल गेट, let me rephrase it. This is your alkyl halide. Whenever alkyl halide undergoes elimination, alkene is formed. And whenever you have double elimination, इसका मतलब 2 alkenes are formed, मतलब 2 double bonds. Okay. So जब elimination होगी यहाँ से तो डबल बॉन्ड यहाँ भी आ जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5 और डबल बॉन्ड यहाँ भी आ जाएगा. ओके. सो ओनली वन प्रोडक्ट इज हियर. इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है. I think A is the right answer. But let's talk about 1,4-dibromopentane. Let's make the structure first. 1, oh my goodness. 1, 2, 3, 4, 5. 1 bromo, ये आ गया 1 bromo. 2, 3, 4 bromo, ये आ गया 4 bromo. Okay. According to the concept, elimination takes place from the hydrogen of adjacent carbon, from the hydrogen of beta carbon atom. तो elimination यहाँ से भी हो सकती है. Okay. Elimination यहाँ से भी हो सकती है, elimination यहाँ से भी हो सकती है. इसका मतलब ये हुआ कि you will get multiple structures, multiple products from here. I think you will get 3 different products from here. First तो ये हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 और सेकंड ये वाली हो जाएगी. एक तो ये हो गई. ठीक है. यानी मैंने यहाँ से और यहाँ से करवा के ये बना दिया. और अब ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों हो जाए. थ्री, 4, 5 ये हो जाए. ठीक है. तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स हैं जबकि उन्होंने हमसे कहा है 1 प्रोडक्ट. इसका मतलब ऑप्शन B is incorrect and same for C भी incorrect होगा, D भी incorrect होगा क्योंकि multiple products आएंगे. Okay. Question number 26. आप चाहें तो हम C को भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस पर टाइम लगेगा. फिर वैसे ही कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. वो कह रहे हैं 2, वो कह रहे हैं 3. सही है. 2, 3 डाइब्रोमो. तो एलिमिनेशन जो है वो यहाँ से भी हो सकती है. एलिमिनेशन जो है वो यहाँ से भी हो सकती है. 2, 3 डाइब्रोमो. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3 डाइब्रोमो. 4, 1, 2, 3, 2, 3 डाइब्रोमो. 1, 2, 3, 4, 5. Oh God. No. 2, 3 डाइब्रोमो ये होगा. सही है. तो एलिमिनेशन यहाँ से भी हो जाएगी, एलिमिनेशन यहाँ से भी पॉसिबल है, एलिमिनेशन यहाँ से भी पॉसिबल है. तो अगेन 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगी आपको. ठीक है. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मोर देन 1 प्रोडक्ट. शॉर्ट करके लिख देते हैं मोर देन 1 प्रोडक्ट. जबकि एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हो आपके पास. ठीक है. दैट इज द होल सिनेरियो. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3 dibromo. 2, 3 dibromopentane. 1, 2, 3, 4. Wait. 1, 2, 3,
4 5 1 2 3। तो अगर मैं एलिमिनेशन करवाऊंगा, एलिमिनेशन यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी, और एलिमिनेशन यहाँ से भी हो सकती है। सिमिलरली एलिमिनेशन यहाँ से भी हो सकती है। सो ऑब्वियसली मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, सॉरी मोर देन 1 प्रोडक्ट। ये सब एक दूसरे के लिहाज से एडजेसेंट बीटा कार्बन एटम हो जाएंगे, तो इसकी एलिमिनेशन हो जाएगी। ओके, the diagram shows the formation of compound Y from compound X in a chemical reaction. R1 and R2 are alkyl groups. Which row about this reaction is correct? पहली बात कि ये आपका साइनोहाइड्रिन है, ओके, और साइनोहाइड्रिन is always formed through aldehyde and ketone. All right, or aldehyde and ketone always undergoes nucleophilic addition reaction. So nucleophilic addition reaction, so option A is wrong, option B is wrong, nucleophilic addition is right, this one is right. Now we need to decide whether it is aldehyde or ketone. पता कैसे चलेगा? मुझे पता चल रहा है कुछ इस तरह से कि यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो कीटोन कंटेन 2 अल्काइल ग्रुप्स, एल्डिहाइड अगर होता तो एक हाइड्रोजन होता है यहाँ पर, सही है ना? इसका मतलब इट मस्ट बी एन एल्डिहाइड, इट मस्ट बी अ कीटोन, तो कीटोन, therefore C is going to be the right answer. So 3 कार्बन एटम का कीटोन है गाइस, ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। ये जो आपके पास X है ये प्रोपेनॉन, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा CH3, ये भी हो जाएगा CH3। ओके, so because of the presence of 2 alkyl groups attached to this carbon atom shows that X must be a ketone, because अगर aldehyde होता तो यहाँ पर एक H आता, ठीक है। Next 27. Oh God, that's a lengthy question, I believe. In this question, you can assume that 1H and 3H have the same chemical properties because they have same electron in their valence shell, because both of them are isotopes of hydrogen. Okay, a sample of ethanol contain only 1 isotope of hydrogen. Okay, next, it is reduced to compound Z in a nucleophilic addition reaction using sodium borohydride. All the hydrogen atoms in NaBH4 are this. Okay, so आपके पास ये एक एल्डिहाइड है और ये रिड्यूस होकर इस अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है ऑब्वियसली, और जो अल्कोहल बन रहा है उसके अंदर इसमें H है, H3 है। चलो देखते हैं, लेट मी सॉल्व दिस। CH3 COH, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में। सही है। अब तुम सब जानते हो कि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, लेकिन जब रिएक्शन करेगा तो जाहिर सी बात है इसके 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। All right guys, so when this reaction undergoes reduction reaction,
ऑब्वियसली ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है वो 1 रहेंगे, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगी क्योंकि ये ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ CH2OH, तो ऑब्वियसली इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो पहले से था हमारे पास, तो हम उसको यहाँ लिख देते हैं। और ये जो है हमारे पास, ये इस सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, इस रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया जो हमसे वो कह रहे हैं। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे कंपाउंड Z इज देन ऑक्सीडाइज्ड बैक टू इथेनॉल एंड वाटर। अब अगर मैं इस कंपाउंड Z को ऑक्सीडाइज करूं तो ये वापस इथेनॉल और वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं जनाब इसको इथेनॉल और वाटर में कन्वर्ट। ये आपके पास इथेनॉल है, वो इथेनॉल है, सॉरी, सही है। और हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ऑक्सीजन से, तो ऑब्वियसली इट विल टर्न टू इथेनोइक एसिड, सॉरी इथेनॉल, my goodness, a lot of working actually, इथेनॉल, ओके। सो जैसे वर्किंग थी वैसे देख लेते हैं, ये 1 ये 1 ये 1, ये आपके पास क्या था 3, आई नीड स्पेस, वेट, इसको, ठीक है। सो वाटर भी आएगा यहाँ से, H प्लस वाटर, वाटर को हम ओपन करके लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए और आपको बात समझाने के लिए, ये H और ये भी H, ओके गाइस। ये तीनों के तीनों तो 1 थे, इसको एज इट इज रखें। ये भी 1 था आपके पास और ये था 3 और ये भी था 3। जब आप इसको वापस रिएक्शन में लेकर आएंगे तो ये तो 1 एज इट इज रहेंगे, ठीक है। और ये जो 1 है ये भी एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएंगे, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन 3 हो जाएं। अच्छा, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है भाई कि ये जब ऑक्सीडाइज हो, ठीक है ना, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, डायरेक्ट नहीं करते, इसको यहाँ लिख लेते हैं। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास इथेनॉल है। दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन गाइस, इट्स नॉट एन इजी थिंग। और अगर आप इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हो, ऑक्सीडाइज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये इथेनॉल में कन्वर्ट होगा और साथ में वाटर भी बनाएगा। एंड दिस टाइम वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह, ठीक है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई ये तीनों के तीनों 1 थे, ये आपके पास दोनों 3 थे और ये, सॉरी, ये 3 थे और ये 1 था, ऐसा ही है। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर वाटर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बनाए, तो इस वाटर के अंदर एक H और एक 3 वाला हो सकता है, एक 1 वाला एक 3 वाला हो सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। जबकि ये तीनों के तीनों एज इट इज और ये वाला 3 एज इट इज, तो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। वो कह रहे हैं बोथ इथेनॉल एंड वाटर कंटेन H3 एटम्स, बोथ इथेनॉल एंड वाटर कंटेन H3 एटम्स, बिल्कुल सही बात है। इथेनॉल में H3 एटम्स है, वाटर में भी H3 एटम्स है, यहाँ पर भी वाटर में H3 एटम्स है, राइट। सो बोथ इथेनॉल एंड वाटर contain H3 atoms. These are the possibilities, so both of them are correct. So I think A is going to be the right answer. Next देखो, ethanol is the only product containing this, नहीं जी water में भी है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। Neither ethanol nor water contain this, नहीं दोनों में है, ये भी गलत। Water is the only product, नहीं जी ethanol में भी है, ये भी गलत, ठीक है। That's a tough question, no doubt. Now the next is ethane dioic acid has the formula this. What is the formula of aluminum ethane dioate? Guys, जब आप इस कंपाउंड को आयोनाइज करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा C2O4 माइनस में प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस में, राइट। और आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है 3 प्लस और इसके ऊपर चार्ज कितना है 2 माइनस। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला बनेगा Al2 C2O4 टेकन 3
एंड ऑब्वियसली ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है, विच इज व्हाई डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. Question number 29, which reaction gives butanoic acid as one of its product? One of its product. आप जानते हैं कि ये आपका एसिड का पार्ट है, ये भी एसिड का पार्ट है, ये भी एसिड का पार्ट है, ये भी एसिड का पार्ट है, ऐसे ही है ना. तो जो एसिड का पार्ट है वो एसिड देगा, तो ये आपको क्या देगा? इथेनोइक एसिड. सही. ये भी आपको क्या देगा? इथेनोइक एसिड. ये आपको क्या देगा? ब्यूटानोइक एसिड. और ये आपको क्या देगा? salt of butanoic acid. Why salt of butanoic acid? Because we have alkaline hydrolysis. Okay, so जो butanoic acid बनेगा उसका salt बन जाएगा, तो salt of butanoic acid, that is butanoate salt बनेगा. Final product is butanoate salt. Okay, I hope it makes sense to you. So right answer guys is going to be C. And obviously option A गलत होगा, B गलत होगा, D भी गलत होगा. Question number 30. Question 30 says infrared से related है. When reactant X is treated with the suitable reagent, product Y and Z are formed. Infrared spectra of X, Y and Z are shown. ये reactant X है, इसमें 500 से इसमें 500 से लेकर 1500 से लेकर 3000 तक कोई भी फंक्शनल ग्रुप की पीक नहीं है, बस इसमें एक ये पीक है और ये पीक CH को रिप्रेजेंट कर रही है, which appears at 3000 सेंटीमीटर इनवर्स. जब आपने इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाया एक रिएजेंट से, तो ये प्रोडक्ट Y बना, ये प्रोडक्ट Z बना. ये जो आपके पास प्रोडक्ट Z है, ये बेसिकली ये शेप पूरी की पूरी ये शेप ब्रॉड पीक को रिप्रेजेंट कर रही है, OH ऑफ COOH को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट. और ये वाली जो पीक है ये ऑब्वियसली 1700 सेंटीमीटर इनवर्स है, ये 3000 सेंटीमीटर इनवर्स है और ये 1700 सेंटीमीटर इनवर्स है. इसका मतलब ये कार्बोनाइल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट Z इज कार्बोक्सिलिक एसिड. प्रोडक्ट Z इज कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि वो जो कैरेक्टरिस्टिक पीक मैंने उसकी शेप हाईलाइट की और वो आपको फ्रीक्वेंसी बताई है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की. तो प्रोडक्ट Z इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज हियर, हियर एंड हियर. ओके. प्रोडक्ट Y. प्रोडक्ट Y के साथ क्या इशू है? प्रोडक्ट Y के साथ इशू है कि आपके पास ये एक पीक है, ये पीक जो है वो तकरीबन 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर है, एंड दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. सो कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन में होता है, तो ये एल्डिहाइड है, सॉरी कीटोन है, ये गलत. कार्बोक्सिलिक एसिड हो नहीं सकता बिकॉज 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर OH ऑफ COOH पीक एब्सेंट. सही है, तो इसका मतलब COOH नहीं हो सकता. तो प्रोडक्ट Y इज नॉट COOH, तो एसिड गलत, अल्कोहल गलत, क्योंकि अल्कोहल की भी पीक नहीं है, सो इट मस्ट बी कीटोन. Oh my goodness, so right answer is going to be B, I think so, क्योंकि सबसे ज्यादा चेक्स जो हैं वो इसी के ऊपर लग रहे हैं. ओके, बट मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको. अगर मैंने B लिया है, इसका मतलब जो X है वो ये है आपके पास. इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बनाते हैं, एक मिनट को इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको. ये है आपके पास पेन टू ईन 1 2 3 4 5. 2 ईन इसका मतलब सेकंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है. 2 मिथाइल इसका मतलब ये CH3 है. ओके, इसको वैलेंसी सेटिस्फाई करो, इधर CH, इधर CH2 और इधर CH3. अब आप जानते हैं कि ये CH है और अब आप जानते हैं कि ये C डबल बॉन्ड दिस है. तो अगर आप इसको ट्रीट करवा रहे हो एक रिएजेंट से, और रिएजेंट में अभी बता देता हूँ आपको क्या है, तो आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, इसका मतलब यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये CH3 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, और जो CH है वो कन्वर्ट हो गया COOH में, यानी ये आ गया COOH. ठीक है, प्लस CH3 एज इट इज,
कार्बन एज इट इज, CH3 एज इट इज, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये आपका हो गया कीटोन। सो ये आपके पास हो गया Z, और ये आपके पास हो गया Y। ओके, तो जो रिएजेंट है वो बेसिकली हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 है, क्योंकि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 एल्कीन से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है, कीटोन भी बनाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनेगा, जब डबल बॉन्ड के साथ CH होगा, और कीटोन कब बनेगा, जब डबल बॉन्ड के साथ सिर्फ C होगा। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट, a sample of 17.15 mole of HI is in dynamic equilibrium with 2.27 moles of hydrogen and 2.84 moles of iodine in a volume of 1 meter cube at 764 Kelvin and 141 kilopascal. Two equilibrium constant Kc and Kp can be calculated by using this mixture. Which statement about the equilibrium constant for this mixture are correct? वैसे ये अब नहीं आते आपके पास, ये फॉर्मेट अब नहीं आता, एग्जामिनर ने चेंज कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए मैं समझता हूँ कि काफी इंटरेस्टिंग है, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, काफी काफी अच्छा है इनफैक्ट ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके। सबसे पहली तो बात ये है कि मैं यहां से इस 1 मीटर क्यूब की कन्वर्जन कर लेता हूं। कन्वर्जन ये है कि 1 dm क्यूब is always equals to 1 times 10 to the power minus 3 meter cube. If you have 1 meter cube, so dm cube कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 dm cube. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेरा पहला स्टेप हो गया, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप कि मैंने कन्वर्जन किया। सेकंड स्टेप, मैं इस रिएक्शन के लिए KC का एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा HI, क्योंकि HI के 2 मोल्स हैं इसलिए पावर स्क्वायर ओवर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल स्क्वायर DM-6, और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही है यूनिट्स तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा मोल स्क्वायर DM-6। तो ये यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो नो यूनिट, तो KC हैज नो यूनिट। इसी सेकंड के अंदर एक और चीज भी देख लेते हैं, KP को भी देख लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की पावर स्क्वायर ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 into partial pressure of I2। ओके, तो पार्शियल प्रेशर इन्होंने किलोपास्कल दिया हुआ है, तो हम किलोपास्कल ले लेते हैं, ये किलोपास्कल का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी किलोपास्कल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल, इसका मतलब इसमें भी नो यूनिट। तो KC की भी कोई यूनिट नहीं है, KP की भी कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब मेरा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही है। अभी मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट पे वर्किंग करके ये निकाल दिया। ओके, अब KC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 45.6, तो मुझे मोल्स गिवन है, मुझे वॉल्यूम गिवन है, मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल ऑफ देम बाय डिवाइडिंग 1000। सही है, तो मेरे पास क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं कंसंट्रेशन को कुछ इस तरह से देख लेता हूं। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया, मेरा थर्ड स्टेप है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज बेसिकली 17.15, ये तो मोल्स थे, और 1000 डीएम क्यूब है तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ओके, मोलर। बिल्कुल इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन लूंगा मैं, मोल्स मुझे मालूम थे 2.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन के मोल्स गिवन है
2.84 कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो into 10 to the power -3 molar. These are the values of concentration of reactant and products. Just plug in the values and you will get the answer. Oops, Kc equals to ये हो जाएगा 17.15 into 10 to the power -3. इसका स्क्वायर कर लें क्योंकि 2 मोल्स हैं इक्वेशन में, ओवर 2.27 into 10 to the power -3 into 2.84 into 10 to the power -3. So guys, जगह नहीं है हमारे पास, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं. तो ये हमारे पास Kc की वैल्यू आ रही है यहाँ से 45.6. तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गया कि वैल्यू ऑफ Kc इज फाइन. अब जाहिर सी बात है Kc ज्यादा है या Kp, उसके लिए मुझे Kp कैलकुलेट करना पड़ेगा और Kp मैं उस वक्त कैलकुलेट कर सकूंगा जब मैं इन तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर लूंगा. और पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली मैं अप्लाई करूंगा आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि मुझे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब गिवन है. सो मेरे पास जगह नहीं है, बट मेरा थर्ड स्टेप हो गया. मेरा फोर्थ स्टेप के लिए मैं ये ले लेता हूँ. फोर्थ स्टेप जो हो जाएगा PV इक्वल्स टू nRT. ठीक है, पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू nRT. मैं क्यों V से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि V तो सबके लिए सेम है. V तो सबके लिए सेम है ना, 1 dm 1 मीटर क्यूब या 1000 dm क्यूब, तो वॉल्यूम क्योंकि सेम है तो 1 से डिवाइड करोगे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो अब मैं इन सब के लिए 1 by 1 डिटरमिन करता हूं. तो मैं सबसे पहले डिटरमिन करता हूं HI के लिए. मोल्स है मेरे पास 17.15, R की वैल्यू है 8.31 और टेम्परेचर मुझे गिवन है 764. तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ HI मेरे पास कितना आ जाएगा? माय गुडनेस, आई एम गेटिंग अ वेरी वियर्ड आंसर, बट लेट्स ट्राई दिस. ठीक है, फिर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैलकुलेट करना है. तो मोल्स ऑफ H2 कितने हैं? 2.27 इनटू R की वैल्यू फिक्स होती है फॉर ऑल द केसेस 8.31. टेम्परेचर इज सेम, दैट इज 764. तो मेरे पास यहाँ से पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है? 14461.866. ठीक है, अब मुझे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, बस चेक करना है आयोडीन का. आयोडीन के मोल्स हैं 2.84, R की वैल्यू 8.31 और टेम्परेचर है हमारे पास 764. तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन मेरे पास कितना आ गया? सारे आंसर्स बहुत वियर्ड हैं, आई डोंट नो ये सही है गलत, बहरहाल देखते हैं. 18030.7056. दीज आर द पार्शियल प्रेशर. अब मैं इसके थ्रू Kp की वैल्यू निकालूंगा. सारी वैल्यूज को प्लग इन कर देते हैं. 10888.2.606 इसका स्क्वायर कर दो. ओके, डिवाइडेड बाय 14461.866 into 18030.7056. तो यहाँ से Kp की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से Kp की वैल्यू गाइस मेरे पास आ रही है 45.6. तो इसका मतलब Kc और Kp दोनों की वैल्यूज तो सेम आ गई मेरे पास इत्तेफाक से. Kc की वैल्यू भी, माय गुडनेस, Kc की वैल्यू भी सेम, Kp की वैल्यू भी सेम. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है एंड देयरफॉर राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. ठीक है, जब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक होते हैं तो आंसर बी होता है हमेशा अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज. लेकिन क्योंकि अब ये आप पेपर में नहीं आता तो आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये किसी जमाने में होते थे, बहुत मुश्किल होते थे, हम बच्चों को सॉल्व कराते थे और ये हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी थे.
somehow इससे आपकी जो स्किल्स होते हैं कैलकुलेशन के, एनालिटिकल स्किल्स, थिंकिंग स्किल, वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं बच्चों के, इसलिए हम कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को. An energy cycle for the combustion of methane is shown. Okay, which expression can be used to calculate the energy change delta Hz? अच्छा जी, हम क्या करते हैं, हम एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बना देते हैं. तो ये वैल्यू और ये वैल्यू प्लस, ये वैल्यू माइनस, इक्वल्स टू 0 कर देते हैं. तो हम कर देते हैं डेल्टा एच एफ ऑफ मीथेन प्लस डेल्टा एच सी ऑफ मीथेन माइनस डेल्टा एच सी इक्वल्स टू 0. तो मैं यहाँ से डेल्टा एच सी अगर ले लूँ, कैलकुलेट करूँ, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच एफ सी एच फोर माइनस डेल्टा एच सी सी एच फोर. तो मेरा पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कंबस्शन ऑफ कार्बन एंड कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन. तो देखो, कंबस्शन ऑफ कार्बन है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन है क्योंकि वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. और क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, इसलिए उसने इसकी एनर्जी की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई भी किया है. इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है. ऑलराइट. थर्ड, क्योंकि कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल है, इसलिए उसने कंबस्शन की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज 2 मोल ऑफ वाटर बना. तो ये स्टेटमेंट ठीक है. लेकिन कंबस्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट गिवन इन द होल साइकिल, व्हिच मींस ये स्टेटमेंट गलत है. तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये गलत है, एंड देयरफॉर थर्ड इज इनकरेक्ट. अगेन आंसर इज बी. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. Next, question number 33. Many gases do not obey the general gas equation at high pressure. Okay. Why is this? यार, पहली तो बात ये कि जब प्रेशर हाई होता है तो क्या होता है गैसेस के साथ. गैसेस के साथ सबसे पहली चीज, गैसेस कंप्रेस हो जाती है. सही, ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट, गैस बिकम्स लिक्विफाई एट हाई प्रेशर. ठीक है. और तीसरा पॉइंट, जब गैस लिक्विफाई हो जाएगा तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहेगा. तो वॉल्यूम इज नो लॉन्गर नेग्लिजिबल. ठीक है. आखिरी चीज, अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टुगेदर. attractive forces exist because volume is no longer negligible, molecules comes close together. Okay. पहला ऑप्शन पढ़ते हैं. At high pressure, molecule have more energy. गलत. Pressure has nothing to do with energy. एनर्जी कम या ज्यादा जो है वो टेम्परेचर के ज्यादा और कम होने की वजह से होती है. ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. जब पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो आंसर हमेशा सी होता है. इफ यू कैन सी इन द ऑप्शंस, देखो 2 and 3 are. तो अगर फर्स्ट गलत हो गया इसका मतलब बी तो गलत हो गया और ए भी नहीं हो सकता. और जाहिर सी बात है 1 और 2 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये भी गया, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ सी रह जाएगा. राइट. इसलिए हमने स्ट्रेट अवे सी कर दिया, आगे पढ़ा भी नहीं हमने. लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं. एट हायर प्रेशर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम. ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहेगा. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट, एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. मैंने कहा अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती है बिकॉज मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टुगेदर. तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है. 34, व्हिच species accept a lone pair of electron to form a coordinate dative bond. BF3 contain one empty pz orbital according to my lecture.
Okay, and obviously both of them have positive charge, so they are electron deficient as well. So याद है मैंने क्या कहा था कि dative bond is formed when electron rich and electron deficient should react together. फिर मैंने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को पहचानोगे कैसे, तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि यहाँ पर है, इसका मतलब ये भी ठीक, ये भी ठीक। और मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी होता है, तो बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 13 और ग्रुप 13 के जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सबके पास एम्प्टी पीजेड ऑर्बिटल होता है, इसका मतलब ये भी ठीक, इसका मतलब तीनों ठीक है, एंड देयरफॉर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, बट यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ मैं स्टेटमेंट बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सही है। 35. A sample containing X moles of Al2Cl6 dissolve in water to give solution W. In order to precipitate all of the aluminum and its hydroxide, Y mole of NaOH are required. More of the alkali is added to redissolve the precipitate, giving solution Z. Which statement are correct? Okay, Jana, which statement are correct? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास Al2Cl6 है, उसको हमने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से प्लेस किया, तो जाहिर सी बात है ये कन्वर्ट हो जाएगा टू AlCl3.3H2O। ठीक है, अब ये जो आपने बनाया है कंपाउंड, इसको हमने A1 केमिस्ट्री में कुछ इस तरह से लिख के दिया था आपको, AlH2O taken 6 3+। ओके, और आप जानते हैं कि ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी वाटर अपना एक प्रोटॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेंगे प्रोटोनेटेड वाटर बनाएगा और इसका कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह का हो जाएगा, AlH2O taken 5OH, और चार्ज 3+ के बजाय 2+ हो जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। सही है। अब ये जो आपके पास H3O+ है, दिस इज एसिडिक सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली जो इनिशियल पीएच ऑफ सॉल्यूशन W है वो बिलो 7 होगी, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि वो एसिडिक सॉल्यूशन कह रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, अब मसला ये है कि आपके पास जो कंपाउंड है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा लेते हैं। ठीक है, जब हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो प्रेसिपिटेट बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के और सोडियम क्लोराइड बना लेगा। सोडियम क्लोराइड में यहाँ 6 है तो मैं यहाँ 6 लगाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ 2 लगाऊंगा, ये मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये 1 मोल है, ये 6 मोल है, राइट। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6। इसका मतलब y x की वैल्यू 1 है तो x 3x तो नहीं हो सकता ना, ये गलत। जब सेकंड गलत हो जाता है तो आंसर हमेशा डी होता है। सही है, आगे सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये देखो, जब सेकंड ऑप्शन आपने गलत कर दिया यानी 2 गलत हो गया, यहाँ पर भी 2 गलत हो गया, यहाँ पर भी 2 गलत हो गया, तो इसका मतलब ना ए आंसर होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, सिर्फ और सिर्फ डी आंसर होगा ना, क्योंकि इसमें इसमें 2 नहीं आ रहा ऑप्शन। ठीक है, दैट्स अ ट्रिकी, वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, नॉट एन इजी क्वेश्चन। और जहन में रखिएगा ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं आपके जो लेटेस्ट पेपर्स हैं उनके ऑप्शंस के लिहाज से। Next, nitrogen dioxide gas is produced when petrol burned in car engine. Which acid are made in the atmosphere as a result of this releases nitrogen dioxide into the air? Okay. अच्छा, तो पहली जो चीज ये है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, नाइट्रस एसिड बनाएगा विच इज HNO2, नाइट्रिक एसिड बनाएगा विच इज HNO3। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया क्योंकि HNO3 बना रहा है। अच्छा, आप सब जानते हैं कि NO2 एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड को ये ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा और खुद NO में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट।
अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये ऑब्वियसली वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और एसिड रेन बनाएगा, और उस एसिड रेन का फॉर्मूला होगा सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। तो H2SO4 भी बनाया और H2SO3 नहीं बन रहा है इन इक्वेशंस में, तो इसका मतलब C is going to be the right answer. Okay, I hope it makes sense to you. Question 37. In which reaction is the major product formed by the nucleophilic substitution reaction? तो आप सब जानते हैं कि nucleophilic substitution reaction takes place in alkyl halide. ठीक है, takes place in alkyl halide. तो अब आगे पढ़ते हैं. Bromoethane and potassium cyanide in ethanol. ओके, बिल्कुल होगा ये, बिल्कुल होगा. मतलब आप ये कह लीजिए, कहाँ गया ये, अब ये कह लीजिए कि ब्रोमो इथेन है मेरे पास CH3 CH2Br, और हम इसको पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2CN प्लस KBr में. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट इज राइट. सेकंड, ब्रोमोइथेन CH3 CH2Br, अमोनिया से रिएक्शन कराओगे अंडर प्रेशर, तो CH3 CH2 NH2 बनेगा और इसके साथ HBr भी बनेगा. तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इज रिएक्टिंग, तो ये भी बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगर मैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH इन एथेनॉल से रिएक्शन करवाऊं तो फिर एलिमिनेशन होगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बजाय एल्कीन बनेगी, दैट इज C2H6 और C2H4 प्लस HBr. So this is your elimination. क्योंकि ये जो कंडीशन आपने लगाई हुई है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH इन एथेनॉल, ये एलिमिनेशन की है. तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हुआ, ये एलिमिनेशन हुआ, इसलिए ये गलत. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट. Oh God. An excess of P reacts with Q in the presence of concentrated sulfuric acid to form R. Effervescence is seen when a piece of sodium is added to pure R. The structure of P is shown. Okay. What organic compound could be compound Q? Achha, this P has alcohol. Oh, this P has carboxylic acid. That means it can react with alcohol and form ester. Okay. Similarly, this P has tertiary alcohol. And this tertiary alcohol can react with carboxylic acid to give an ester. तो इन दोनों से रिएक्शन करके आपको एस्टर मिल जाएगा. But this is ketone. Ketone never react with any alcohol or carboxylic acid. इसका मतलब ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे. तो first is right, second is right, third is wrong, and answer is going to be B again. Okay. लेकिन एक चीज है, रिएक्शन करते हैं बिकॉज ये मैंने तो समझा दिया, लेकिन इस स्टेटमेंट से हमने टैली करना है हर चीज, तो हम रिएक्शन करवा लेते हैं. हम इस कंपाउंड को इससे रिएक्शन करेंगे तो एस्टर बनेगा, एंड ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा CH3CO. ये एसिड का पार्ट लिख लिया मैंने. अब मुझे अल्कोहल का पार्ट लिखना है, तो अल्कोहल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 CH3 हैं, फिर CH2 है और फिर COOH है. तो ऑब्वियसली बेटा ये रिएक्शन कर लेगा सोडियम मेटल से टू गिव हाइड्रोजन गैस, है ना, जिसको वो एफरवेसेंस कह रहा है. इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट वाज राइट. ओके, पहले एसिड का पार्ट लिखते हैं. ये आपका एसिड है, पहले इसको लिखो. ओपन करके लिख रहा हूं मैं CH3C
CH3 God ये OH as it is, ये CH2, ये CO, ये एसिड का पार्ट हो गया और ये अल्कोहल है, तो हम इस अल्कोहल को यहाँ लिख देते हैं O CH2 CH3। चेक, ये भी रिएक्शन कर लेगा सोडियम मेटल से, because alcohol and carboxylic acid can react with sodium metal. Sodium metal to give hydrogen gas, right? Which is why first and second statement is correct. Third तो हो ही नहीं सकता because ना alcohol से reaction करता है कीटोन, ना ही carboxylic acid से reaction करता है. Let's move on to the next part of the question. That is 39. Oh God, 39 में क्या है? Two carbonyl compounds have the molecular formula C3H6O. अगर two carbonyl compounds हैं तो इसका मतलब इसमें से एक aldehyde हो जाएगा 3 carbon atom का, that is CH3 CH2 CHO, और एक आपका कीटोन हो जाएगा, that is CH3 CO CH3 CO CH3. Okay. वो कह रहे हैं which reagent give different observation with these two compounds. वो कह रहे हैं एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैग्नेट 7 एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन नेवर ऑक्सीडाइजेस। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि वो आपसे डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मांग रहे हैं, सेम नहीं मांग रहे, डिफरेंट मांग रहे हैं। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। दूसरा भी ठीक है इसलिए क्योंकि ये फेलिंग का टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। और थर्ड भी ठीक है इसलिए क्योंकि आइडोफॉर्म का टेस्ट इसमें नहीं आएगा, और इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके पास CH3 CO ग्रुप अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें आ जाएगा क्योंकि इसके पास CH3 CO ग्रुप क्लियरली अवेलेबल है। ओके, सो राइट आंसर फॉर 39 is going to be an A. Last question guys. Oh, last question and again okay, कैलकुलेशन आ गई है लास्ट क्वेश्चन में, चलें पढ़ लेते हैं। An organic compound T does not fizz with aqueous sodium carbonate is added to it. Compound T contain this much by mass of oxygen. What could be the identity of T? So beta option 3 is incorrect because this is acid. An acid can react with sodium carbonate while examiner is saying does not fizz. इसका मतलब third option is going to be incorrect. Okay, third मैंने देखना ही नहीं है। Competition exists between 1 and 2. तो मैं सबसे पहले काम क्या करता हूँ, मैं MR ऑफ इसका MR निकालता हूँ। इसका MR है बेटा 58 सही, और इसका फॉर्मूला है CH3 CH2 CHO। सिमिलरली मैं इसका भी MR निकाल लेता हूँ। इसका MR है गाइस 116 और इसका फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 CO2 C2H5। okay, all right, so okay, और आप जानते हैं कि इससे भी सोडियम मेटल का रिएक्शन नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट का, इससे भी सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन नहीं होगा। आई थिंक बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, बट ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, इसको एडजस्ट करना है मैंने। चलो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन देखना है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट के लिए देख लेते हैं। परसेंटेज इक्वल्स टू आपके पास ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, उसको डिवाइड कर दीजिए आप 58 से, विच इज द मॉलिक्यूलर मास, इनटू 100। तो आपके पास कितना आ रहा है यहाँ से 27.6%, और ये एग्जैक्टली वही मास है जो एग्जामिनर ने मुझे दिया। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड के लिए करो, परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके पास कितना है 16, और क्योंकि इस फॉर्मूले में 2 ऑक्सीजन है इसलिए इंटू 2 करूंगा, डिवाइडेड बाय 116 इज द MR इंटू 100। तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से 27.6%। ये 27.6% एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ था, इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, राइट। थर्ड भी देख लो, थर्ड वाले के लिए भी वर्किंग कर लेते हैं। परसेंटेज, इसमें पेंटानोइक एसिड है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन 16, पेंटानोइक एसिड में 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, इंटू 2 करो, डिवाइडेड बाय MR। इसका MR भी 116 है,
गाइस इसका MRB 116 है, ओके। इनटू 100 करो तो ये आपके पास आ जाएगा 27.6%। अब देखो इस तीनों में 27.6% आई है, लेकिन इसको मैंने गलत इसलिए कर दिया था क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके फिजिंग देगा, जबकि एग्जामिनर कह रहा है डज नॉट फिज, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड राइट आंसर इज गोइंग टू बी obviously B. Okay, I hope it makes sense to you. I hope you get the point. I hope you get the answers. That's the end of this paper. Thank you very much.